वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति युक्तमाश्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. We are studying Canto 1, Chapter 15, Text 11. Yo no to gopa वन हरे कृष्णा माता जी। दुर्वाशोरी रचित अयुत्तग्रभोगया शकान शिष्टम उपयुज्यत त्रिलोक्यं तृप्तम अमांस्त शलिले विनिम्नग्ना संघा यो न जुगोपा वन इत्य दुरंत कृच्छ्रद दुर्वाशोरी रचित अयुत्तग्रभोग्या सकानुशिष्टम् उपयुजयता त्रिलोकं तृप्तं ममांस्तः सलिलविनिमग्न संगः. पूजा माता जी पढ़ो श्लोक. यो नो जुगोपावन एक दुरंत प्रचित्रद दुर्वाससुरचितद अयुत्र ग्रभुग्यः सकानन सिस्टम युप उपायुज्य यत स्त्रीलोके तृप्तम अमं स्तार सलील विनिमग्न संग. हरे कृष्ण गीता माता जी. What do you हरे कृष्णा माता जी। Yeah, one who na us Yugopa fiction, one a forest, Hitya getting in, Duranta dangerously, Krichat trouble, Durvasa of Durvasa Muni, Hari enemy, Rachitat fabricated by Ayutta 10,000, Agrabuk one who eats before, yeah, that person, Sakana Shishtam, remnants of foodstuff, Upijya, having accepted, Yatha, because, Trilokim, all three worlds, Triptam, satisfied, Amamsta, thought within the mind, Shalile, while in the water, Vinimagna, Sangha, all merged into the water. पूजा माता जी, will you read? आप पढ़ोगे? मेरा ना गला. जी माता जी. During the exile, Durvasa Muni, who eat with 10,000 disciples, intrigued with our enemy to put us in a dangerous trouble. At that time, the Lord Krishna, simply by accepting the remnants of food, saved us. By his accepting food, thus the assembly of Munis, while bathing in the river, felt sumptuously fed, and all the three worlds were also satisfied. Purport. Durvasa Muni, a powerful mystic Brahmana, determined to observe the principle of religion with a great vows and under strict austerities. His name is associated with many historical events, and it appears that the great mystic could be both easily satisfied and easily annoyed, like Lord Shiva. When he was satisfied, he could go tremendous good to the servitor, but if he was dissatisfied, he could bring about the greatest calamity. Kumari Kunti at her father's house used to minister all kind of service to
all great Brahmana, and being satisfied with her good reception, Durvasa Muni benedicted her with all the power to call all demigod she desired. It is understood that he was a plenary incarnation of Lord Shiva, and thus he could be either easily satisfied or annoyed. He was a great devotee of Lord Shiva, and by Lord Shiva order he accepted the priesthood of King Swetaketu, Swetaketu because of king's performance of sacrifice for 100 years. Sometimes he used to visit the parliamentary assembly of the heavenly kingdom of Indradev. He could travel in space by his great mystic power, and it is understood that he has traveled a great distance through space, even up to the Vaikuntha planet, beyond material space. He traveled all this long distance within 1 year. During his quarrel with King Ambarisha, the great devotee and emperor of the world, he had about 10,000 disciples, and wherever he visited and became a guest of the great Kshatriya kings, he used to accomplished by number of followers. When he visited the house of Duryodhana, the enemy cousin of Maharaj Yudhishthir, Duryodhana was intelligent enough to satisfy the Brahmana by all means. And the माता जी, थोड़ा नीचे करना. And the great Rishi wanted to give some benediction to Duryodhana. Duryodhana knew his mystic power, and he knew all that mystic Brahmana, if dissatisfied, could some cause havoc. And thus he designed to engage the Brahmana to show his warmth upon his enemy cousin, the Pandava. When the Rishi wanted to award him some benediction to Duryodhana, the later wished that he should visit the house of Maharaj Yudhishthir, who was the eldest and chief among all the cousins. But by his request, he could go to him after he had finished all the meals of his queen Draupadi. Duryodhana knew that after Draupadi's dinner, it would be impossible for Maharaj Yudhishthir to receive such a large of Brahmana guests, and thus the Rishi would be annoyed and would create some trouble for his son Maharaj Yudhishthir. This was the plan of Duryodhana. Durvasa Muni agreed to this proposal, and he appointed the king in exile according to the plan of Duryodhana after the king and Draupadi had finished their meal. On his arrival of door of Maharaja Yudhishthir, he was at once well received, and the king requested him to finish his noontime regular rites in the river. By that time, the foodstuff would be prepared. Durvasha Muni, along with his large number of disciples, went to take bath in river, and Maharaja Yudhishthir was in great anxiety about the guest. As long as Draupadi had not taken her meal, food could be served to any number of guests. But the Rishi, by the plan of Duryodhana, reached there after Draupadi has finished their meal. When the devotee are put into difficulty, there are an opportunity to recollect the Lord with rapt attention. So Draupadi was thinking of Lord Krishna in a dangerous position, and all the pervading Lord could at once know the dangerous position of his devotee. He therefore come there on the scene and asked Draupadi to give whatever food she might have in her stock. On her being so requested by the Lord, Draupadi has sorrowful because the Supreme Lord asked her for some food and she was unable to supply it at that time. She said to Lord that the mysterious dish which she had received from the sun god could supply any amount of food if she herself had not taken. But on that day, she had already taken her meal. Taken her meal, and thus they were in danger. By expressing her difficulty, she began to cry before the Lord, as only women would do in such position. The Lord, however, asked Draupadi to bring up the cooking pot to see if there was any particle of foodstuff left, and on Draupadi doing so, the Lord found some particle of vegetables sticking on the pot. The Lord at once picked it up and ate it. After doing so, the Lord asked Draupadi to call for her guests, the company of Durvasa. Bhim was sent to call from the river, them from the river. Bhima said, "Why are you delaying, sir?
come on, the food is all ready for you. But the Brahmana, because of Lord Krishna's accepting a particle of food, felt sumptuously fed even while they were in the water. They thought that since Maharaj Yudhishthir must have prepared many valuable dishes for them, and since they were not hungry and could not eat, the king would feel very sorry. So if it was better not to go there, thus they decided to go away. The incident proves that the Lord is greatest mystic, and therefore he is known as Yogeshwara. Another instruction is that every householder must offer food to Lord, and the result will be that everyone, even a company of guests numbering 10,000, will be satisfied before the lords of being satisfied. This is the way of devotional service. हम्म, ये स्टोरी शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी हो. थैंक यू पूजा माधुरी. यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जैसे जब पांडव लोग मतलब एग्जाइल में थे, मतलब जब उनको 12 वर्ष तक मतलब राजमहल से दूर रहना था, उस दौरान दुर्वासा मुनि जो थे एक बहुत ही पावरफुल ब्राह्मण है, ठीक है, जो सभी बड़ी प्रिंसिपल रिलीजन प्रिंसिपल बड़ी वाउस जो है बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, ठीक है. सो उनके मतलब वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाया करते थे और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते थे. हाँ, ऐसा मतलब कथन है. तो कहा जाता था कि भगवान शिव जैसे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं की प्लानरी एक्सपेंशन इनकारनेशन माने जाते हैं. मगर भगवान शिव के बड़े भक्त भी थे वो. तो जैसे कुंती महारानी का बताया गया कि बहुत शुद्ध भक्त थी, तो वो काफी ब्राह्मणों को प्रसन्न किया करती थी सेवा करके. तो दुर्वासा मुनि को भी सेवा की थी. तो दुर्वासा मुनि ने उनको वो क्या कहते हैं वर दिया था कि अगर वो चाहे तो किसी भी देवता को बुला के तो उससे पुत्र प्राप्ति कर सकती हैं, और उनकी जो वर्जिनिटी है वो बनी भी रहेगी. मतलब वो क्या है कि बिना विवाहित होके भी मतलब पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं और उनका कुमारपन बना भी रहेगा. तो ऐसा में था. तो इस तरीके से था, और वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते थे दुर्वासा मुनि, यहाँ तक कि वैकुंठ प्लेनेट भी जा सकते थे यहाँ बहुत ही जगह से. सो मतलब इतना दूर दूर तक जाना बहुत कम समय में जाते थे. तो अम्बरीश महाराज के साथ भी उनका एक क्वारल हुआ था. अम्बरीश महाराज को भी मतलब जब अम्बरीश महाराज ने एक बार व्रत रखा था एकादशी का, तो उनको व्रत पालन करना था. तो दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे. अब देखिए, तो उन्होंने बोला कि मैं स्नान करके आता हूँ. दुर्वासा मुनि ने बोला. तो अम्बरीश, अब जो व्रत का फल तभी मिलता है अगर वो समय पे उसको मतलब कंप्लीट किया गया हो. तो उन्होंने निर्जल रखा था, तो उनको था कि इसको कंप्लीट भी करना है. तो फिर बोले क्या करें, खाना तो खा नहीं सकते क्योंकि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं तो सही नहीं लगता. तो फिर उन्होंने बोला कि पानी पी लेता हूँ. पानी एक तरह से क्या है, खाना खाए भी नहीं भी खाए मतलब बराबर ही है. तो पानी पिया, दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आ गया. तो उन्होंने अम्बरीश महाराज को श्राप दे दिया था, तो जिसका भुगतान उनको बाद में करना पड़ा. तो अलग कथा थी. तो वैसे ही यहाँ पे कथा आती है कि एक बार क्या हुआ, तो एक बार ये जो दुर्वासा मुनि है अपने शिष्यों के साथ में दुर्योधन की असेंबली में जाते हैं. दुर्योधन भी ब्राह्मणों की बड़ी खातिरदारी करता था. तो इस तरीके से वो दुर्वासा मुनि को बहुत प्रसन्न कर पाया. दुर्वासा मुनि ने मांगा, बोला उनको मांगो, अच्छा कुछ मांगना है तो दुर्योधन को इतना पता था कि ये जो ब्राह्मण है ये बड़ा मिस्टिक है दुर्वासा मुनि. अगर ये असंतुष्ट हो गया तो ये कुछ भी कर सकता है. तो उसको था कि ये उसके जो कजन ब्रदर है पांडव उनका विनाश कर दे. उसने बड़ी चालाकी की. तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि आप जो मेरे भाई युधिष्ठिर महाराज, अब उनको जरूर विजिट करना और तब जाना, स्पेशली जब वो खाना खा चुके हो और मतलब द्रौपदी भी खा चुकी हो. तो अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो मिस्टिक पावर से पता चलेगा. तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि दुर्योधन को पता था कि अगर द्रौपदी ने खाना नहीं खाया हो तो कितने भी लोग, क्योंकि द्रौपदी के पास भी एक अक्षय पात्र था जिसमें से क्या होता था कि अगर द्रौपदी अगर उसमें से अगर थोड़ा सा भी बचा हुआ होता था सभी लोगों को पूरा हो जाता था. तो ये दुर्योधन को पता था. दुर्योधन का प्लान ये था कि सब कुछ खत्म हो गया हो,
द्रौपदी ने भी खाना खा लिया हो, तब ये जाए, तब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज को इतना था कि जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी तो कितने भी लोगों को वो खिला सकते हैं, पर अगर द्रौपदी ने खा लिया तो ये लोग आए नहीं। तो दुर्वासा मुनि तो नहाने गए होते अपने शिष्यों के साथ, तो आते नहीं है। अब द्रौपदी ने खाना खा लिया होता, कुछ भी नहीं बचा होता, तो अब ये सारे लोग क्या है, मुसीबत में होते हैं। पांडव लोग ये बोलते हैं कि अगर दुर्वासा मुनि इतने 10,000 शिष्यों के साथ आएंगे, खिलाएंगे क्या? हम कोई राजमहल में थोड़ा ना रह रहे, जंगल में रह रहे, कैसे खिलाएंगे? ऊपर से द्रौपदी ने भी खा लिया, अब क्या होगा? तो उस समय द्रौपदी मैया ने भगवान कृष्ण का चिंतन किया, और फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि अच्छा कुछ बचा, कुछ दाना तो बचा होगा। तो उस पात्र में एक छोटा सा चावल का दाना था, तो भगवान ने उसी दाने को खाया। और जो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ नहर में नहाने गए थे, सारे ऐसे उनको लग रहा था मानो पूरी तरह फुल हो, मतलब बिल्कुल जगह नहीं पेट में। उस समय कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, आप इनवाइट, अब उनको बोलो कि आ जाओ, खाना बन गया। तो भीम को भेजते हैं, तो जब भेजा जाता है तो क्या होता है, दुर्वासा मुनि सोचते हैं अब हम तो पेट तो फुल है, वहां जाके क्या खाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, बेहतर है कि ना ही जाए। तो वहां से भाग जाते हैं सारे के सारे। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और यहाँ से जैसे बताया गया कि जो गृहस्थ हैं, जो भी खाना बनता है वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाए। जब भगवान को भोग लगता है तो आप कितने भी नंबर ऑफ आपके गेस्ट आ जाए, उनको अच्छे से संतुष्ट कर पाओगे। और ये एक्सपेरिमेंटेड भी है कि प्रसाद अगर थोड़ा सा भी लिया हो ना, ऐसे मानो लगता है कि जैसे पता नहीं कितना ज्यादा खा लिया। तो ये प्रसाद की महिमा है। तो भगवान को हर समय अर्पण करना चाहिए और फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यतेजस्ता भगवान युधिशूलपाणिर् विशां पितासागरजुस्त्रं तदन्निजं मे अन्या अपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवाने महदसानर्धाम्। It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of God Lord Shiva and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus Lord Shiva became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition I was able to reach the heavenly planet in this respective body and was allowed a half elevated seat. तो क्या वो अर्जुन कह रहे हैं, देखो ये सारे पास टाइम अर्जुन याद कर रहे हैं, तो कह रही है केवल आपकी कृपा ही थी कि भगवान शिव और मदर पार्वती जो हिमालय की पुत्री है उनको प्रसन्न कर पाया अपनी शक्ति से। इस प्रकार भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने स्वयं अपना ही जो वेपन था, लड़ने वाला जो हथियार, वो मुझे दे दिया। जो बाकी देवी देवतागण थे उन्होंने भी अपने अपने जो हथियार थे अर्जुन को दिए। इन एडिशन तो ये कि अर्जुन क्या है, इवन स्वर्ग तक जा पाए अपने इसी शरीर से। देखिए इसी शरीर में स्वर्ग जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब अपने कर्मों के अनुसार कोई जा सकता है ऐसे नहीं, मगर अर्जुन ऐसे भी डायरेक्टली स्वर्ग जा सकते थे, केवल भगवान की कृपा थी। कहते हैं कि देवताओं का वरदान था कि ऐसा पॉसिबल था। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा ऑल द डेमिगॉड्स इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा वर प्लीज्ड विद अर्जुन। भगवान की कृपा ही थी कि सारे देवगण और शिवा भी अर्जुन से प्रसन्न थे। कहा जाता है कि जिसको भगवान शिव का फेवर मिल जाता है या कृपा मिल जाती है, कहा जाता है कि जो भगवान शिव और उनके देवताओं से फेवर मिल जाए, तो जरूरी नहीं है कि भगवान का फेवर भी हो। रावणा, देखिए यहाँ पे जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि शिव जी का वरदान मिला, देवताओं से वरदान मिला, तो भगवान की कृपा मांग रहे हैं।
पर देखिए हर केस में ऐसा नहीं है कि जिनको भी भगवान शिव से कृपा मिल जाए या देवताओं की कृपा मिल जाए तो उसको भगवान का भी कृपा हो, नहीं। जैसे रावण था, भगवान शिव का भक्त था, हाँ, अगर वो भगवान के गुस्से से कौन बचा पाया उसको? रामचंद्र के हाथों मारा गया ना। ऐसे कई इंस्टांसेस हैं हमारे पुराणों में, और एक इंस्टांस है वेयर वी कैन सी कि जहाँ पे शिव जी भगवान के भक्त अर्जुन से प्रसन्न थे। तो भगवान के जो भक्त हैं वो जानते हैं कि देवताओं को कैसे प्रसन्न करना है, हाँ, मगर जो देवताओं के जो भक्त होते हैं वो भगवान को भक्तों से ज्यादा बढ़कर नहीं मानते, मतलब देवताओं से बढ़कर नहीं मानते। देखिए जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि सभी देवताओं की वो क्या है, रिस्पेक्ट करता है, आदर सम्मान करता है। मगर देवताओं के जो भक्त होते हैं वो कितने मूर्ख होते हैं, कई बार वो सोचते हैं कि भगवान जो देवगण है वही सबसे सर्वोपरि है। कितनी बेवकूफी है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से वो क्या अपराधी बन जाते हैं, और उनका भी अंत ऐसे ही होता है जैसे रावण का हुआ। The instances described by Arjuna during his friendly dealing with Lord Krishna are instructive for all who may be convinced by the lesson that one can achieve all favor simply by pleasing Supreme Lord Krishna. Where the devotee or worshipper of the demigods may achieve only partial benefits, which are also perishable, just as the demigods themselves. तो क्या अर्जुन ऐसी जो ये जो कथाएं बता रहे हैं भगवान के साथ जो उनके संबंध है, इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिसको भगवान की कृपा मिल जाए उसको सबकी कृपा मिल जाती है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Another significance of the present verse is that Arjuna, by the grace of Lord Krishna, was able to reach the heavenly planet even with the self same body and was honored by the heavenly demigod Indradev, being seated with him half elevated. तो एक और इस वर्ष से हम ये सीख सकते हैं कि अर्जुन दो, देखिए था तो जीवात्मा ही ना, मगर भगवान की इतनी कृपा थी कि डायरेक्टली स्वर्ग जा सकता था, और वहां पे देवताओं के साथ एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में बैठे हुए। तो वन कैन रीच हेवनली प्लैनेट बाय द पायस एक्ट रिकमेंडेड इन शास्त्रा। तो देखिए अगर हमें जाना है स्वर्ग लोग तो हमें पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, है ना, कि कोई पुण्य कर्म करेगा तो भी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि when the reaction, और भगवद गीता में ये लिखा है कि मगर जब वही पुण्य कर्म का कोटा खत्म हो जाता है तो आपको दोबारा धरती लोक में भेज दिया जाता है। Moon is also on the level with the heavenly planet, and only person who have performed virtues only from a sacrifice, giving charity and undergoing semi-honesty can be allowed to enter the heavenly planet after the duration of life of the body. अब जैसे चंद्रमा है वो भी एक क्या है, स्वर्ग लोक के बराबर में ही माना जाता है, तो हेवनली प्लेनेट की तरह ही है। तो देखो चंद्रमा जाने के लिए भी स्पेसशिप से नहीं जा सकते, जो मूर्ख लोग बोलते हैं कि हम लोग तो गए चंद्रमा पे, कोई नहीं गया है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो क्या, पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, तब कहीं जा सकता है, ऐसे थोड़ा ना जा सकता है। तो अर्जुना was allowed to enter into heavenly planet in the self same body simply by the grace of Lord, otherwise it is not possible। केवल भगवान की कृपा से वो स्वर्ग जा पाया इसी शरीर में। मगर आजकल के जो साइंटिस्ट लोग हैं जो ऐसे स्वर्ग लोक में ऊपर के प्लेनेटों में जाना चाहते हैं वो व्यर्थ के कार्य हैं, क्योंकि अर्जुन थोड़ी ना है कि भगवान की कृपा मिली है उनको। वो क्या है, साधारण मनुष्य हैं, और बिना सेक्रीफाइस के, बिना तपस्या के वो उच्च लोगों पे एलिवेट नहीं हो सकते। कहा जाता है कि जो भौतिक शरीर वो 3 गुणों के अधीन है, रजो तमो और सतो के। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है कलयुग की वो ज्यादातर क्या है, रजो और तमो गुण की। ठीक है, उनमें कैसे सिम्टम है, सभी क्या है, कामी हैं और लालची हैं, और ऐसे डिग्रेडेड लोग कैसे स्वर्ग लोग तो पहुंच सकते हैं बताओ। और above the heavenly planet are many other planet also, जिनमें भी वही लोग जा सकते हैं जो सतोगुणी हो। तो ऊपर के लोग हों या बाकी प्लेनेट हो यूनिवर्स में जितने भी हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, मनुष्य से कई ज्यादा, और कई पुण्य कर्म किए उन्होंने सतोगुण में। और वो हमेशा भगवान के भक्त होते हैं, और ऑल्दो उनका जो सतोगुण है वो क्या है, गड़बड़ा नहीं सकता,
Still they are known as demigod, possessing the maximum amount of good qualities possible within the material world. तो फिर भी उनको क्या कहा जाता है? डेमिगॉड्स कहा जाता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे। मगर भौतिक जगत में भी अगर कोई एलिवेटेड आत्माएं हैं तो वो कौन है? देवगण है, सबसे उच्च कोटि के, वही भगवान के भक्त हैं, ऊपर के लोगों को रहते हैं, ठीक है। तत्रैव मे विहार्तो भुजदण्डयुग्मं गान्धीव लक्षणम् अर्तिविधाय देवा सेन्द्राश्रिताय अनुभावितं अजामिदः तेना मद्या मुषितः पुरुषेण भुम्ना। When I stayed for some days as a guest in the heavenly planet, all the heavenly demigods, including King Indradev, took shelter of my arms, which are marked with the Gandiva bow, to kill the demon named Nivat Kavacha. O King, descendant of Ajamidha, at the present moment I am bereft of Supreme Personality of Godhead, by whose influence I was so powerful. तो अर्जुन बता रहे हैं कि जब मैं कुछ दिनों तक स्वर्ग लोक में था, तीव्र इंद्र जी मेरी शरण ली कि वहां पे एक डीमन था निवत कवच नाम का, उसको मारने के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो कह रहे हैं कि जितनी भी ये जो शक्ति थी वो केवल भगवान की कृपा से थी, और अब मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं है। कहते हैं जो देवी देवतागण में बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली, सुंदर होते हैं, मगर वैसे लोगों ने भी अर्जुन की कृपा मांगी, बोला कि नहीं हमें मदद करो, बिकॉज अर्जुन के पास गांधीवा था। गांधीवा वो बो था बड़ा फेमस, जो कि इम्पावर्ड था भगवान कृष्ण की वजह से, उसमें बड़ी शक्ति थी। सो द लॉर्ड इज जो है वो सबसे शक्तिमान है, और उनकी सबसे विशेष कृपा रहती है अपने भक्तों पे, और उनकी कृपा से वो अपने भक्तों को कितनी भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिट ना हो। When the Lord withdraw his power from anyone, he is powerless by the will of the Lord. और भगवान जब ऐसी कृपा ले लेते हैं तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पावरलेस हो जाता है। तो देखिए हर क्षण अगर किसी को भगवान का फेवर मिल जाए तो क्या क्या फायदे हैं। तो क्या आप लोग नहीं भगवान की कृपा लेना चाहते? सब लोग लेना चाहते हैं, तो भगवान के भक्त बनना पड़ेगा अर्जुन के समान, तब हमें भी भगवान की कृपा मिल सकती है। ठीक है, तो यहीं पे विराम लेते हैं, समय हो रहा है। तो किसी के कोई प्रश्न हो या कुछ कोई कहना चाहे या पूछना चाहे तो बोल सकता है, कुछ नहीं है तो वी कैन स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? नथिंग? ठीक है, फिर अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम लेते हैं। 3 बार हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, ऑल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द इवनिंग। भगवद गीता। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। उठ गए? ठीक।